So, very good morning to all. We have already completed classification on the basis of time and classification on the basis of behavior. So today we are going to start with classification on the basis of function. So give the heading on the basis of functions. On the basis of functions. Or you can say functionality. On the basis of functionality. Everything is simple. Whatever I'm writing, please write down and revise it. I am very much confident that you will not be having any doubt in this. ठीक है सर, ये डिवाइड होता है टोटल 5 पार्ट्स में. इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट? 5 पार्ट्स. सबसे पहला पार्ट दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स. सेकंड वन इज administration overhead. Administration overhead. Third part, selling overheads. Selling overheads. Next part, distribution overhead. Distribution overheads. And last part is research and development overhead. Research and development overheads. So during the whole session, I'm going to use the short forms. Sir, मैं इसको short form use करूँगा. FOH, AOH, SOH, DOH, and RNDOH. FOH means factory overhead. OH is nothing but administration overhead. SOH का मतलब होता है selling overhead. DOH is all about distribution overhead. And research and development overhead. That is R&D overheads. R&D overheads. So there are total 5 types of overhead on the basis of functionality. On the basis of functionality. Now we are going to learn slowly, gradually, each and every concept in detail. ठीक है sir. Before going ahead with this discussion, पहले मैं आप लोग को एक थोड़ा बात बता दूं. Sir, factory overhead means what? Any overhead which is related to factory. Any overhead which is related to factory will always be treated as factory overhead. If you remember, आप लोगों को 11th में 12th में जब ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट आप लोग करते थे और ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया जाता था, तो they always used to say कि all the expenses which are direct in nature which is related to factory should be put it into the trading account. Similarly, all the expenses which are related to factory will be called as a factory overhead. It means factory related expenses को हम लोग बोलते हैं factory overhead, right? Office and administration related expenses. Office and administration related expenses से को we are going to call it as an OHA overhead. And selling and distribution overhead. बेटा यहाँ पे मैंने अलग से लिया हुआ है selling and distribution. These are the two different concepts, but we will be learning both of them as a separate concept. मैं separate लिख देता हूँ. SOH, that is selling overhead, and distribution overhead. It is related to sales and distribution. Sales and distribution. इसके मैं आपको examples देता हूँ so that while understanding factory overhead, it will be easy for you to know what is factory overhead, what is office and administration overhead, and what is selling overhead. जैसे कि for example factory rent, factory overhead, क्योंकि ये rent factory का. Factory lighting, factory lighting, factory lighting, factory heating, factory heating, depreciation on machine, because machine कहाँ पे यूज होता है? फैक्ट्री में. Depreciation on machine.
then depreciation on machine, production expenses, then wages, or you can say factory worker salaries, ठीक है. If you see, all these examples are related to factory, and therefore it is called as a factory overhead. ठीक है sir. Now what about office and administration overhead? So office and administration overhead में we'll have an office rent, office salary, office salaries, office lighting, printing and stationery. Means when you read the term, you will come to know better ये particular जो expenses है वो related to office है. Depreciation on furniture used in office, ये ध्यान देना है. Depreciation on furniture, depreciation furniture is already written. So these all expenses are called as what? These all expenses are called as office and administration overhead. Selling and distribution से related, sir, salesman salary, salesman commission, after salesman commission, marketing expenses. Marketing comes under selling and distribution. So every companies are doing marketing. Yes. Traveling expenses. Salesmen generally do traveling in relation to sales. Traveling expenses. And depreciation on delivery van. We can say free sample. Generally, we do free sampling whenever we introduce some new product in the market. Whenever we start to introduce some new product in the market, advertisement, etc. These all are related to selling and distribution. I've just given an example. It's just to a brief review before going ahead with these overheads. Please note down this. Once you are done, put a message in the chat box that you are done. Once you are done, put a message in the chat box that you are done. Waiting for more reply. जल्दी करेंगे. चलो now please ध्यान देना सारे के सारे बच्चे. Now I'm going to put the whole explanation. I will try to add the whole explanation in the same page. If it is possible, then only I will be using the next page. Otherwise, not. ठीक है? Yes. So what is factory overhead? So factory overhead क्या है? Expenses incurred in the factory. Example मैंने already दे दिया. Expenses incurred in the factory. कोई भी expenses अगर आप फैक्ट्री में incurred करते हो, they are called as an expense factory overhead. ठीक है? चलो सर कौन से expenses को हम लोग factory overhead बोलेंगे? कौन से expenses को हम factory overhead बोलेंगे? Now, if indirect material
Listen very carefully. If indirect material and labor, indirect material and indirect labor are given in the questions, always assume factory overhead. सर नहीं समझा. जैसे कि फॉर एग्जांपल सर फैक्ट्री में डायरेक्ट लेबर काम करता है, बरोबर है, बराबर है, डायरेक्ट लेबर. जैसे कि सर वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट करना है तो वी नीड कारपेंटर, बरोबर है, कारपेंटर लगेगा. पर सर कारपेंटर को हेल्पर होता है, हेल्पर इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट लेबर. सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं, फर्नीचर को प्रोड्यूस करते हैं. जहाँ पे वुड को कन्वर्ट करते हैं, वुड को कन्वर्ट करते हैं फर्नीचर्स में, तो सर वहां पे कारपेंटर होता है, बरोबर है. सो कारपेंटर इज अ डायरेक्ट लेबर. बट अपार्ट फ्रॉम कारपेंटर there are other persons also to whom company pay salary. जैसे कि एग्जांपल हेल्पर होता है, वॉचमैन होता है, सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर होता है, और स्टाफ्स होते हैं, ऑफिस स्टाफ्स. ये जिन इनको जो भी पेमेंट दिया जाता है, these all people are working in this company. But question is, are they involved in production? Are they involved in production? Answer is no. And therefore they are called as an unproductive labor. अनप्रोडक्टिव लेबर. जब भी क्वेश्चन में उन्होंने वही लिखा हुआ है, जैसे कारपेंटर के अलावा, वुड के अलावा और कोई मटेरियल दिया हुआ है जो हमारी प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं होता है. सर जैसे कि सर वुड को जब फर्नीचर में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग कटर यूज करेंगे वुड को कन्वर्ट करने के लिए, टू ब्रिंग देम इनटू द प्रॉपर शेप, बराबर है. तो मशीन चलेगा किस पे, ऑयल एंड ग्रीस पे. सो व्हाट इज ऑयल एंड ग्रीस? ऑयल एंड ग्रीस इज कॉल्ड एज अ मटेरियल. बट क्या ये ऑयल एंड ग्रीस से मैं फर्नीचर बनाता हूँ? आंसर इज नो. दे आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. सो मशीन को क्लीन करने के लिए हम लोगों को कॉटन यूज करते हैं, कपड़ा यूज करते हैं, क्लॉथ यूज करते हैं. व्हाट इज क्लॉथ? इनडायरेक्ट मटेरियल. क्या वो क्लॉथ फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया था? नहीं. बट सर वो फर्नीचर से रिलेटेड ही वो खर्चा है, क्योंकि वो कॉटन हम लोगों ने यूज किया था फॉर क्लीनिंग द मशीन, फॉर क्लीनिंग द फर्नीचर आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. सो वी आर यूजिंग फेविकॉल. यस. इज इट डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल? सो इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल बिकॉज प्रोडक्ट में वो ट्रेसेबल नहीं होता है, प्रोडक्ट में वो ट्रेसेबल नहीं होता है. We are using nails, we are using sellotapes. These all are indirect material. So what here is given is, पहले मैंने बोला कोई भी एक्सपेंसेस अगर फैक्ट्री में इंकर्ड होता है उसे हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड. अभी फैक्ट्री में दो टाइप के ओवरहेड्स हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर. कोई भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, कोई भी इनडायरेक्ट लेबर है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा उसको हमेशा एज्यूम करना है वो क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड है. क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड. One more thing, so factory overhead is also called as production overhead. Factory overhead is also called as production overhead. It is also called as work on cost, or you can say work overhead. ये दो नए टर्म्स है, बेटा ध्यान देना. You have to be very careful. Factory overhead is also called as production overhead. It is also called as work overhead. ठीक है सर. ठीक है. तो सर आप ये कहना चाहते हो कि फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, इनडायरेक्ट लेबर आएगा, इनडायरेक्ट लेबर आएगा, जो किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री से रिलेटेड है. अगर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, ऑलवेज एज्यूम इट इज फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि वो फैक्ट्री में यूज हो रहा है. इसमें सबसे अच्छा
फैक्ट्री में यूज हो रहा है। नाउ व्हाट इज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मींस एक्सपेंसेस incurred in the factory, incurred in the office. मैंने फैक्ट्री बोला, रियली सॉरी, incurred in the office, expenses incurred in the office. Sir, example, journal expenses, journal expenses. क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, make it as an office and administration expenses. Anyway, many examples we have already taken in, but apart from this, journal expenses है. ठीक है, मैं डिफिकल्ट टर्म ले रहे जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है. ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस. व्हाट इज सेलिंग ओवरहेड? सेलिंग ओवरहेड मींस व्हाट? एक्सपेंसेस incurred toward selling the product, towards selling the product, towards selling the product. And what is distribution? Expenses incurred toward distribution of product, distribution of product. If we combine both the overhead together, it becomes selling and distribution overhead. Actually हम उसको selling and distribution overhead बोलते हैं, but in this classification we have shown selling overhead separately and distribution overhead separately. So कोई भी expenses जो selling of product से related है उसे हम लोग selling overhead बोलेंगे. Any expenses related to distribution overhead, we will call it as a distribution overhead. ठीक है. Sir, research and development overhead. So these expenses incurred toward R&D. Toward R&D. R&D means research and development. अभी ये जो R&D है वो दो टाइप के होते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये दो टाइप के होते हैं. पहला होता है प्रोडक्ट रिलेटेड. प्रोडक्ट रिलेटेड आपने देखा होगा जनरली बहुत सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में होते हैं उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले कोलगेट हुआ करता था, फिर कोलगेट जेल आया, फिर कोलगेट सॉल्ट आया, फिर कोलगेट सेंसोडाइन आया, फिर कोलगेट फ्रेश आया. ये अलग अलग जो एडिशन है, ये जो अलग अलग जो मार्केट में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में अल्टरेशन होता है, इट इज आउट ऑफ रिसर्च विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट. बात समझ में आया या नहीं है? ठीक है. दूसरा, so there are some expenses which is incurred toward research and development is called as research and development overhead. These research may be related to product, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड होगा या नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड होगा. नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड होगा, नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड रिसर्च होगा. ठीक है. यस. नाउ सर अगर प्रोडक्ट रिलेटेड होगा तो उसमें दो बातें आएगी. दैट इज ओल्ड कॉस्ट शीट फॉर्मेट. एंड दूसरा रहेगा न्यू कॉस्ट शीट फॉर्मेट. सर पहले कोलगेट प्रोडक्ट हुआ करता था. अभी जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले, प्लीज ध्यान देना है,
मार्केट में कोलगेट प्रोडक्ट में पेस्ट की बात कर रहा हूँ, मार्केट में आने से पहले पहली बार जो कॉस्ट शीट बना होगा, कॉस्ट शीट पहली बार, उसे हम लोग बोलेंगे ओल्ड कॉस्ट शीट फॉर्मेट। फिर बाद में रिसर्च किया गया, रिसर्च में पता चला कस्टमर्स आर फेड अप विद यूजिंग सेम कोलगेट, समथिंग एडिशन शुड बी देयर, समथिंग एडिशन शुड बी देयर। रिसर्च किया, कस्टमर्स का डिमांड है प्रोडक्ट में थोड़ा साइटली चेंज होना चाहिए, देन इट बिकम कोलगेट सेंसोडाइन, कोलगेट फ्रेश, कोलगेट जेल, कोलगेट सॉल्ट। इट इज आउट ऑफ रिसर्च। रिसर्च करने के बाद अगर कंपनी कोई नया प्रोडक्ट, नया एडिशन मार्केट में करती है, तो बट ऑब्वियसली देयर विल बी चेंजेस इन कॉस्ट। यस सर, देयर विल बी चेंजेस इन कॉस्ट। अभी कॉस्ट में चेंजेस होगा, कितना चेंजेस होगा, चलो बनाओ कॉस्ट शीट। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट क्यों बनाया जाता है, कॉस्ट शीट बनाया जाता है टू नो कि कंपनी कितना कॉस्ट आने वाले टाइम पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे खर्चा करने वाला है जो मार्केट में नया होगा। आप बोलो कि सर मार्केट में नया कहाँ पे, ये तो पुराना ही है। नहीं बेटा, जब मार्केट में कुछ चेंजेस करने के बाद आप प्रोडक्ट को मार्केट में एंटर कराते हो, कुछ एडिशन, तो बेटा ऑब्वियस नीड टू इनकर सम एडिशनल कॉस्ट। इसके लिए कंपनी क्या करेगा, नया कॉस्ट शीट फॉर्मेट बनाएगा। ये ओल्ड कॉस्ट शीट फॉर्मेट जो है, इट इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Direct expenses are those expenses without which production is not possible, without which the production is not possible. And जो new cost sheet है, that is nothing but quality control, quality control and testing, quality control and testing। एक काम करेंगे, testing और एक पॉइंट लिख देता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग और R&D। तो नया कॉस्ट शीट जो बनाते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए बनाते हैं, टेस्टिंग के लिए बनाता है। इट इज आउट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट इज आउट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कॉस्ट शीट तब बनता है जब कंपनी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम बनाता है, कोई भी नया प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम बनाता है। बेटा कॉस्ट शीट क्यों बनता है, कॉस्ट शीट सिर्फ दो चीजों के लिए बनता है, टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट कितना होगा, एंड हाउ मच प्रॉफिट कंपनी कैन अर्न आफ्टर फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस, आफ्टर फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस। So why we prepare cost sheet? We prepare cost sheet. We prepare cost sheet to know the cost incurred for producing one product and how much profit company can earn after fixing the selling price. If you remember, मैंने आपको बताया था कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉस्ट को फाइंड करना, सेलिंग प्राइस को फिक्स करना, प्रॉफिट को डिटरमाइन करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। And that reduction should not be temporary in nature, it should be permanent in nature। और परमानेंट नेचर होने की वजह से उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें खुद का एफर्ट्स होना बहुत जरूरी है। ये हम लोग ने डिस्कस किया था, इफ यू ऑल रिमेंबर दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन, डिस्कस इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है सर, research and development overhead is generally of two type, related to product, not related to product। if it is related to product, then it will be old cost sheet, part of direct expenses। जब पहली बार cost sheet बनेगा for introducing newly product in the market, और कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेगा बिकॉज ऑफ R&D, लाइक क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है, टेस्टिंग से है, R&D से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग न्यू फॉर्म कॉस्ट शीट फॉर्मेट बोले। ये जो भी एक्सपेंसेस होगा, ये जो भी एक्सपेंसेस होगा, ये जो भी एक्सपेंसेस होगा, ध्यान देना है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आई होप यू पीपल हैव ऑलरेडी रिटन दिस। ये कॉस्ट शीट से जो भी रिलेटेड होगा, लिसन वेरी केयरफुली, हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, एडेड टू नेट फैक्ट्री कॉस्ट। आप बोलोगे सर नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट टू फॉर्म द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू फॉर्म द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये प्रोडक्शन का एक पार्ट है,
इसलिए हम उसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे। नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क कॉस्ट, उसको हम लोग नेटवर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। वी कॉल इट एज नेटवर्क कॉस्ट ऑल्सो, वी कॉल इट एज नेटवर्क कॉस्ट ऑल्सो, नेटवर्क कॉस्ट ऑल्सो। ठीक है सर, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा? नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट में आएगा सर, ये रिलेटेड टू, अगर फैक्ट्री है, जस्ट वेट, अगर ये रिलेटेड टू फैक्ट्री है तो उसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड करके बोलेंगे। अगर ये रिलेटेड टू ऑफिस प्रोसेस है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्ट्री प्रोसेस। फैक्ट्री से रिलेटेड अगर रिसर्च है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ऑफिस से रिलेटेड रिसर्च है, ऑफिस प्रोसेस से रिलेटेड रिसर्च है, तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। और अगर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस से रिलेटेड है तो सर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। बात समझा? तो सर ये 5 टाइप के एक्सपेंसेस है, मैं वापस एक बार बता रहा हूँ। एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री इज कॉल्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड। सर डायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड? नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, हमेशा ध्यान दें। मे बी इन फ्यूचर यू विल बी हैविंग कॉस्ट अकाउंटिंग टू। सर जब आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब ऐड करते हैं तो वॉट एवर द अमाउंट वी गेट कॉल्ड एज अ प्राइम कॉस्ट। अभी आगे जाके इसी में ही हम लोग प्राइम कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। सर प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसके बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं। सर मान लो रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन कहाँ से करो? सर रॉ मटेरियल है, लेबर नहीं है, प्रोडक्शन कहाँ से करो? सर रॉ मटेरियल भी है, लेबर भी है, मैंने रॉ मटेरियल लेबर दोनों दे दिया, बट सर मशीन्स नहीं, ऑयल्स एंड इक्विपमेंट्स नहीं है। बाकी के अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं जिसके बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट का होना जरूरी है टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। इसमें से अगर एक भी कंपोनेंट मिस होगा, प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। एंड व्हेन वी ऐड ऑल these थ्री कंपोनेंट वी गेट व्हाट, प्राइम कॉस्ट। हमें क्या मिलता है, प्राइम कॉस्ट। उसके नीचे हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, मुझे जो भी अमाउंट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट वर्क कॉस्ट। उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, विल बी गेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हम लोग करेंगे आने वाले टाइम में, डोंट वरी, दिस इज एवरीथिंग इज न्यू टू यू। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बाद में ये सब बातें रिवीजन में आपको इजी जाएगा। दिस विल मेक योर जॉब वेरी सिंपल। कल अगर थ्योरी में क्वेश्चन भी आता है फॉर 5 मार्क्स के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट स्मॉल स्मॉल एक्सप्लेनेशन 2 3 लाइन विद एग्जांपल्स, विल बी गेटिंग आउट ऑफ मार्क्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे मिलेगा टोटल कॉस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल। और सर जब मैं इसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा सेल्स। सर ये हमारे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। Format of cost sheet, this cost sheet is not in our syllabus but we are going to discuss in the coming time also. This is a format of cost sheet. ठीक है सर। So what I said is कि direct material, direct labor, direct expenses. When we add all these three items, we get a prime cost. Now, what is prime cost? Prime costs are those costs which company need to incur for producing the product. बिना ये कॉस्ट का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। ठीक है सर, समझा ये भी? ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पे लिख देता हूं रिलेटेड टू दिस। सर जैसे जैसे आप आगे कॉस्टिंग पढ़ोगे, हमारे जो मेजर ओवरहेड जो हमारे डिस्कशन में रहेंगे वो ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। रिसर्च ओवरहेड बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। बट यू शुड नो दैट रिसर्च ओवरहेड इज रिलेटेड टू टू पार्ट।
One is called related to product and it is non-related to product. नॉट प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्ट्री से रिलेटेड है फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस से रिलेटेड ऑफिस ओवरहेड, रिसर्च से रिलेटेड है रिसर्च, अपना सेलिंग से रिलेटेड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ इंपॉर्टेंट नोट सर, फिक्स्ड ओवरहेड जो होते हैं, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड जो होते हैं वो जनरली फिक्स्ड होते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड आर considered as fixed cost and variable cost. सर ये फिक्स कॉस्ट भी होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, डिपेंड करता है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद है बेटा हमने ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर किया था, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. मैंने आपको बताया था फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं होता है, आप प्रोडक्शन करो नहीं करो आपको खर्चा करना है. वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट होगा. नाउ व्हाट इज गिवन हियर इज सर जनरली जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं वो फिक्स्ड और वेरिएबल होता है. फिक्स भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, ध्यान दें. ऑफिस ओवरहेड जो होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है वो जनरली फिक्स्ड ही होता है. ओवरहेड होता है आर कंसीडर्ड एज फिक्स्ड. सर ये फिक्स्ड होता है. ऑफिस ओवर जैसे कि ऑफिस रेंट है, ऑफिस इंश्योरेंस है, ऑफिस सैलरी है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, इसमें आने वाले सारे आइटम्स फिक्स्ड इन नेचर होता है. ठीक है. सो व्हाट अबाउट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम ही दिया हुआ है सर, सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है. सेल बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, सेल कम होगा खर्चा बढ़ेगा, कम होगा. सो ऑलवेज कंसीडर्ड एज वेरिएबल कॉस्ट. सर मैं ज्यादा एडवर्टीजमेंट करूंगा ज्यादा खर्चा बढ़ेगा, कम एडवर्टीजमेंट करूंगा कम खर्चा पड़ेगा, कम खर्चा होगा. जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगा सेल बढ़ेगा. मतलब एडवर्टीजमेंट्स आर डन ओनली फॉर सेल पर्पस, टू प्रमोट सेल्स, is it right? Anybody want to ask anything related to this? Let me know. If no, then हम लोग इसका लास्ट पार्ट में जाएंगे. सर ये पूरा डायग्राम देखने के बाद हमें ये समझ में आया, कोई भी एक्सपेंसेस अगर हम फैक्ट्री से रिलेटेड इंकर करते हैं तो उसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं. एग्जाम्पल आपने पीछे लिखाया था जो मैंने रब कर दिया. ठीक है. कोई भी एक्सपेंसेस जो ऑफिस से रिलेटेड होता है उसे हम लोग ऑफिस ओवरहेड बोलते हैं. कोई भी एक्सपेंसेस जो सेलिंग से रिलेटेड होता है उसको सेलिंग ओवरहेड. कोई भी एक्सपेंसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर से रिलेटेड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन ओवर रिलेटेड बोलते हैं. कोई भी एक्सपेंसेस जो रिसर्च से रिलेटेड होता है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं. सर अगर वो प्रोडक्ट रिलेटेड है, वो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट है. नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट है, फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस से रिलेटेड है तो ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग से रिलेटेड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. ये तीनों के अलावा वो बाकी किसी से रिलेटेड नहीं होता है. ठीक है सर. सर जैसे आप लोगों को 12th में बताया गया था, 11th में बताया गया था कि वेजेस एंड सैलरी होगा. लिसन वेरी केयरफुल. ठीक है, जस्ट वेट. वेजेस है, सैलरी है, वेजेस एंड सैलरी है, सैलरी एंड वेजेस है. आपको बताया जाता है वेजेस है ट्रेडिंग अकाउंट में डालो, सैलरी है प्रॉफिट एंड लॉस में, वेजेस एंड सैलरी है ट्रेडिंग अकाउंट. वी विल एज्यूम द मेजॉरिटी पोर्शन इज ऑफ वेजेस क्योंकि पहला नाम वेजेस है. सैलरी वेजेस है पीएनएल अकाउंट है. यस और नो? वैसे ही यहाँ पे भी ट्रीटमेंट है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मैं लिखता हूं नीचे. ट्रीटमेंट ऑफ AOH एंड SNDOH. इसमें क्वेश्चन आइदर साइलेंट होगा या क्वेश्चन में दिया रहेगा. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो सर हमारे पास दो ऑप्शन. मान लो आपको दिया है AOH, ऐसा दिया हुआ AOH एंड SOH.
ऑलवेज एज्यूम ये क्या है, AOH। पहला नाम किसका दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवर, तो हम लोग हमेशा उसको क्या मान के चलेंगे, ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। अगर क्वेश्चन में दिया है SOH एंड AOH, तो ऑलवेज एज्यूम दिस इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। से समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो, बट इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है तो व्हाट, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है तो व्हाट, तो उसमें चार पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर वन, क्या क्वेश्चन में OH एंड SNDOH ऐसा दिया होगा, बराबर है। वापस AOH एंड SNDOH, बताइए आपको पॉसिबिलिटी है, इसमें आ सकता है किसमें, ऑब्जेक्टिव्स में। SND एंड AOH, SND एंड AOH। सर तो आपको देखना है, आप बोलोगे सर ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, ये दोनों सेम, यस ये दोनों सेम, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर ये ना रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्या आप बोल सकते हो फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, और यहां पे बोलेगा वो फंक्शंस ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल। अगर सर ये फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन है, then it will be called as, it will be called as administration overhead। बट अगर क्वेश्चन में दिया है ये फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में लेके जाएंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है कि सर ये सेल से रिलेटेड है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है सर, यहाँ पे भी वैसा ही होगा, यहाँ पे भी वही होगा। क्या वो फंक्शन ऑफ सेल है, जस्ट वेट, क्या वो फंक्शंस ऑफ सेल है, क्या वो फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन है। अगर ये फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन है, भले पहला नाम सेल का हो, स्टिल यू आर गोइंग टू कॉल इट एज AOH, कॉल इट एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब हुआ सर वो ऑफिस एक्सपेंसेस हुआ। अभी यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पहला है, बट यहाँ पे बोला है वो फंक्शंस ऑफ सेल है, फंक्शन ऑफ सेल है, then it will be treated as selling and distribution overhead। Selling and distribution overhead। Anybody want to ask anything, let me know. If no doubt, so here we have done with this concept, that is basis, on the basis of functions, on the basis of functions। So on the basis of function में 5 टाइप है, factory overhead related to factory, office overhead related to office, selling overhead related to selling, distribution overhead related to distribution, research and development related to research and development। सर फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री में जाएगा, ये समझ में आ गया। ऑफिस का खर्चा ऑफिस में जाएगा, सेलिंग का खर्चा सेलिंग में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट, पर रिसर्च कहाँ पे जाएगा, तो देखो क्या वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, हाँ फैक्ट्री में जाएगा। ऑफिस से रिलेटेड है, हाँ ऑफिस में जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, यस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। फिर हमने देखा कि सर फैक्ट्री जनरली फिक्स्ड होता है और वेरिएबल होता है, ऑफिस हमेशा फिक्स्ड होता है, सेलिंग हमेशा वेरिएबल होता है। वेरिएबल मींस दोज हु कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन प्रोडक्शन और सेल। सर हम लोगों को कभी कभी दोनों की वैल्यू कंबाइन दी होगी, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, पहला नाम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे।
फर्स्ट नाम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है सर, समझा। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इस और ये जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो सर इसको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर करेंगे। बट अगर उसने बोला ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, भले पहला नाम ऑफिस का होने तो ये रिलेटेड टू सेल है, तो उसको हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीट करेंगे। थर्ड नाम इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है, पहला नाम भले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर क्वेश्चन में बोला है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो उसको आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, और क्वेश्चन में बोला है वो सेल से रिलेटेड है, तो सर आपको ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ही ट्रीट करना पड़ेगा। बात समझा बेटा? बात समझा तो लेट मी नो इफ इट इज yes, let me put a message in the chat box. No direct message. जल्दी, कोई डाउट पूछना है पूछो, नहीं है मेंशन करो नो डाउट, मेंशन करो नो डाउट, पर डाउट है तो प्लीज ऑडियो ऑन करो एंड टॉक टू मी डायरेक्टली। ठीक है सर, we have covered classification on the basis of time, classification on the basis of behavior, classification on the basis of functionality. This will be the last part for today's session. A very simple part, will not be taken more than 10 to 15 minutes on the basis of normality. On the basis of normality. ये सारा डिस्कशन होने के बाद हम एक सेशन लेंगे और मैं आपको बताऊंगा, बताओ ये पर्टिकुलर कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पता है तो सारे आंसर्स आपको आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। चाहिए तो मैं टुमारो एक एग्जांपल बता दूंगा आपको, नियर अबाउट 10 to 15 मिनट्स हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। वॉट एवर वी हैव डिस्कस टिल नाउ, प्लीज वो पहले अच्छे से कर लो, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आपको समझेगा एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव किस तरह से आएगा। ये पूरा ऑब्जेक्टिव पे बेस करता है, ध्यान देना। सर यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी देयर विल बी टू टाइप ऑफ कॉस्ट, वन इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट abnormal cost. So what is normal cost? सर नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसपे मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है सर, कंट्रोल होता है मतलब नहीं समझा। ठीक है सर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, सर ये ऐसा कॉस्ट होता है जिसपे मतलब ये नॉर्मल कंडीशन प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। चलो जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको मैं लिखाता हूँ। नॉर्मल कॉस्ट नॉर्मली normally incurred normally incurred at a given level of output in normal condition। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रॉ मटेरियल परचेज करूं, प्लीज ध्यान दो, क्या आपको लगता है वो पूरा का पूरा 100% रॉ मटेरियल यूज होता होगा? एक सिंपल एग्जांपल, वी आर बाइंग वेजिटेबल फ्रॉम वेजिटेबल मार्केट। मुझे बताओ जैसे वेजिटेबल हम मार्केट से लेके आते, क्या वो वेजिटेबल 100% यूटिलाइज होता है? आंसर इज नो। सर उसे साफ करना पड़ता है, उसमें कुछ वेस्टेज निकलता है। ये पहली बार होगा या हमेशा होगा? सर ये हमेशा होगा, इसके लिए उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट। ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा, ये नॉर्मल कंडीशन पे डिपेंड करता है। और इसके लिए नॉर्मल कॉस्ट ऑलवेज चार्ज टू प्रोडक्शन। सर ये प्रोडक्शन का पार्ट है। सो नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो इंकर्ड होता है एट अ नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट इन नॉर्मल कंडीशन। मैंने एक सिंपल एग्जांपल, चलो मुझे बताओ, सर होटल वाला है, मिठाई वाला है,
सर उसने मिल्क लाया, मिल्क से वो लाइक फॉर एग्जांपल मिठाई बना रहा है, स्वीट्स बना रहा है। मुझे बताओ, मिल्क से जब वो स्वीट्स कन्वर्ट करेगा तो समटाइम इट हैपेंस कि दूध फट जाता है। क्या ये दूध का फटना ये रेगुलर है या इरेगुलर है? यस, आई एम आस्किंग एवरीवन, क्या दूध फट जाता है या इरेगुलर है या इरेगुलर है? सर वो इरेगुलर है, उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। बात समझा? बात समझा? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर, हाउ टू आइडेंटिफाई द नेचर। ठीक है सर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट over and above, over and above, over and above normal cost, normal cost, they are irregular, they are irregular and unexpected, unexpected. Abnormal loss, abnormal cost are incurred at the time of incurred at a given level of output under normal condition. जैसे मैंने बताया, ये हमेशा चार्ज किसको होता है? सर ये हमेशा चार्ज होगा कॉस्ट, चार्ज टू प्रोडक्ट या चार्ज टू प्रोडक्शन। ये कभी भी प्रोडक्शन को चार्ज नहीं होगा। चार्ज टू, ऑलवेज वर्ड लिख देता हूं, ऑलवेज चार्ज टू कॉस्टिंग पीने लगा हूं। Whenever in future we are going to do any topic which is related to cost, अगर वो एबनॉर्मल नेचर का होगा, आप हमेशा देखोगे आप उसको कॉस्टिंग पीएल में ही ट्रांसफर करोगे। और अगर वो नॉर्मल नेचर का होगा तो हम उसको हमेशा किसमें ऐड करेंगे? विल ऑलवेज ऐड टू प्रोडक्शन, ऑलवेज ऐड टू प्रोडक्शन। इज इट करेक्ट? सर इसका एक अच्छा एग्जांपल दोगे तो बेटर रहेगा। चलो एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसको हम लोग विद प्रॉपर कैलकुलेशन से करें, ठीक है? इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, लेट मी नो। सर अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना है आप लोगों को तो प्लीज पूछो, बट in next lecture we will be discussing, first we'll take example on this and then we will turn to the next part. Anybody want to ask anything? If no doubt, let me know, no doubt. कल ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। Anybody? Waiting for more reply? ठीक है then. So we will continue in the next lecture. So bye for the day. Take care. Thank you very much.